Hello dear students, welcome back to the Crystal International Public School, Standard 8, Subject Science, Part 2, Chapter 5, Coal and Petroleum. Coal and Petroleum. In the last video, we have seen about coal. Okay, from where do we get and ओके पहले के ज़माने में कैसे कोल हमें मिलते थे और कितना यूज़ होता था, यूजेस ऑफ कोल, एवरीथिंग वी हैव सीन इन माय लास्ट वीडियो एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक टॉपिक दैट इज पेट्रोलियम. बट बिफोर दैट let's revise that there are very natural resources are there, natural sources are there, and we are using that. Okay, some of the natural resources are unlimited and some of it that is limited in quantity. Okay, so it is given the name that is inexhaustible and existable natural resources. So what is inexhaustible? Inexhaustible means unlimited quantity. Okay, resources that are present into the unlimited quantity in nature, that is called inexhaustible natural sources. Now अनलिमिटेड क्वांटिटी एंड नॉट मैन मेड. मैन मेड ये नहीं है, तो ऐसे कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है? दैट इज सन एंड एयर, सनलाइट एंड एयर. एंड सेकेंड इज एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. वो क्या है? द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड. ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. So they can be existed by human activities. They can be existed by human activities. Like example, forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas. So these are the existable natural resources. Okay. Then after, we have seen about fossil fuels. Fossil fuels means what? Fossil fuels means what? कि ऐसे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है, such type of natural resources, those are used for fuels, used as a fuels. Okay, that is called fossil fuels. It means इंजन को चलाने के लिए जो फ्यूल्स चाहिए, तो इंजन तो नेचुरल रिसोर्सेज में ऐसे तो कौन से है रिसोर्सेज जो फॉसिल फ्यूल्स जैसा वर्क करता है? दैट इज coal, petroleum, natural gas. Okay, so about coal we have to see, but before that one activity has been given over here. In last my video we have seen this activity also, that is okay, we have seen the activity also, that is what that first, second and third generation was given here, and first, second and third generation में सपोज जो फर्स्ट जनरेशन है तो वो आपको क्या देगा? वो जितना यूज़ करेगा कोल को, सपोज उनके ज़माने में, फर्स्ट जनरेशन के ज़माने में देर आर सो मैनी कोल्स एंड पेट्रोलियम्स, so they have used it. Okay, but they have not that much of used, they have saved, they have consumed for us for second generation. तो फॉर सेकेंड जनरेशन के लिए उन लोगों ने कंज्यूम किया कि नहीं, सेकेंड जनरेशन आएगी तो उनको भी यूज़ करना पड़ेगा, सो इसलिए हम थोड़ा बहुत क्या है कि कंज्यूम करें उसको, नेचुरल रिसोर्सेज को, इसलिए कोल उन लोगों ने कंज्यूम किया. ओके, नाउ फॉर थर्ड जनरेशन व्हाट? सेकेंड जनरेशन को जो मिला हाफ सपोज मैं बोल देती हूँ, तो सेकेंड जनरेशन ने क्या किया कि वो यूज़ कर लिया, तो थर्ड जनरेशन के लिए कुछ बचा नहीं. ओके, इट मीन्स व्हाट कि ये नेचुरल रिसोर्सेज जो ऐसे होते हैं कि उसको कंज्यूम करे, उसको ऐसे ही मत छोड़ दे और ऐसे ही मत यूज़ करे. ओके, अनलिमिटेड यूज़ नहीं करना चाहिए, लिमिटेड यूज़ करना चाहिए. कि जैसे
से हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, फर्दर जनरेशन है, so they can use it. Okay, so this is the activity, and here also it gives a fossil fuels. Now fossil fuels means what? One thing you have to do here, that they were formed from the dead remains of living organisms, that is called fossils. It means dead, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डेड बॉडीज है, उससे जो फ्यूल बनता है, तो उससे जो रिसोर्स बनता है उसको क्या बोलते हैं? फोसाइल कहते हैं। एंड वो जो इंजन चलाने में, या फिर सपोज ट्रेन है, ट्रक है, बस है, एक्टिवा है, एंड देन मशीन है, तो कोई भी इंजन चलाने के लिए ये सारे कई सारे यूज होते हैं, तो इट मीन्स इट इज कॉल्ड फोसाइल फ्यूल्स. ओके, and we have seen about coal also. This is a black colored and it is as a stone. Coal is natural resources and its use is given over here. These are the its used. Okay, railway में है, then after thermal power में it is used, cook food में it is used. Okay, various industries it is used. Now story of coal is what? Story of coal में क्या है कि 300 million years ago the earth had dense forest in low lying wetland areas due to natural processes like flooding. तो बहुत 300 मिलियन ईयर अगो ये जो सारी की सारा अर्थ है वो अर्थ किस में था? फॉरेस्ट में था. ओके, बट नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग जैसा जो नेचुरल प्रोसेसेस आया तो उसको रफे दफे कर दिया. रफे दफे करने के बाद वो लोग जो है सारा का सारा जो फॉरेस्ट है वो डेड हो गया, डेड प्लांट्स में कन्वर्ट हो गया. ओके, एंड देन आफ्टर कोई वहाँ पे फ्लडिंग आया तो ये जो सारी सॉइल्स है, ओके, मिट्टी है, क्ले है, तो वो उस पर कवर हो गई. तो इससे क्या होगा कि वो लोग जो है डेड प्लांट्स है वो किस में हो गए? अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट slowly converted to coal. It means what? As more soil deposited over them and they were compressed. Okay, ये जो डेड प्लांट्स है उस पर कवर हो गई और उस पर क्या होगा? कंप्रेस्ड होगा. इट वॉज कंप्रेस्ड. एंड देन आफ्टर बहुत साल बीत गए साल बीत गए एंड देन आफ्टर ये कहीं उसमें कन्वर्ट हो गया, कोल में कन्वर्ट हो गया. ओके, जैसे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर है ना, जैसे ही हम सॉइल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर है. ओके, ज़्यादा है वहाँ पे, तो उससे क्या होगा? कोल में कन्वर्ट हो गया. एंड देन ओके, कोल कंटेन्स कार्बन मोर. तो ये तो नेचुरल प्रोसेस हुआ. चारकोल क्या है? मैन मेड है, कि जो हम लकड़ी लेते हैं उसको फायर देते हैं, फायर के बाद वो फायर हमें देती है एंड देन आफ्टर इट कन्वर्ट्स इनटू द कोल, दैट इज कॉल्ड चारकोल. ओके, The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. अब कार्बनाइजेशन क्या है? कि जो स्लो प्रोसेस है कन्वर्जन की, कोल में कन्वर्जन करने की डेड प्लांट्स की, दैट इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन. ओके, एंड कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल. ओके, so when heated in air, coal burns and produces main carbon dioxide. Okay, coal contains carbon dioxide more, so that's why. Now there are coke, coal tar and coal gas that we have seen in our last video. That is, coke is tough, porous and black substance and it is almost pure form of carbon. Coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. Okay, coal tar is what? That is, it is black thick liquid with an unpleasant smell. That is coal tar, and it is mixture of about 200 substances. See, 200 substances का mixture है ये coal tar. Okay, and it is used as starting materials for manufacturing
various substances used in everyday life and in industries, okay, like synthetic dyes, drugs and explosive perfumes, plastics, paints, photographic materials, roofing materials etc. इसमें भी ये यूज होता है. Okay, now coal gas. Coal gas is obtained during the process of coal to get coke. Okay, and it is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plants. तो हमने यहाँ तक देखा कि कोल का कैसे है प्रोसेस. नाउ वी विल सी दैट पेट्रोलियम. अबाउट पेट्रोलियम वी विल सी. You know that petrol is used as a fuel in light mobiles such as motor cars, motorcycles, scooters and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel. Petrol and diesel are obtained from natural resource called petroleum. पेट्रोलियम क्या है अभी? So let's start about petroleum. That you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. अब पेट्रोलियम आपको पता होगा कि किस में यूज़ होता है पेट्रोल. ओके, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार है. हैवी मोटरसाइकिल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल. देखो यहाँ पे हैवी जो मोटरसाइकिल्स होते हैं दैट इज व्हीकल्स होते हैं दैट इज ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स. तो वो लोग कैसे रन होते हैं, किससे? डीजल से. ओके, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम. पेट्रोलियम में हमें क्या मिलता है? पेट्रोल एंड डीजल बोथ. The word that is petroleum is derived from petra, that is rock, and oleum, that is oil, as it is mined from between the rocks under earth as shown in the figure. देखो यहाँ पे जो अर्थ है तो अंदर से हमें ये सारा का सारा जो पेट्रोलियम मिलता है उसको पेट्रोलियम कहते हैं. एंड दिस इज द नेचुरल sources. Okay, understand? See, can you see over here? That is impervious rocks. Okay, here reservoir rocks, here water, oil and gas. तो ये जो पोर्शन है वहाँ पे गैस आया हुआ है, ये पोर्शन है वहाँ पे ऑयल है, ये पोर्शन है यहाँ पे वाटर है. ओके, एंड दिस इज रिजर्वायर रॉक है ये and this is impervious rocks. Okay, do you know how petroleum is formed? Petroleum was formed from organisms living in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with the layers of sand and clay over millions of years. देखो पेट्रोलियम कैसे बनता है, ये नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हुए पेट्रोलियम. तो यहाँ पे ऐसा है कि अंडर द सी, ओके, इनसाइड द सी देयर आर सो मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट यू नो. तो उसके जो डेड प्लांट्स होते हैं, तो ये जो डेड प्लांट्स जो है वो अंदर डेड हो जाएंगे. ठीक है, डेड ऑर्गेनिजम्स जो है वो डेड हो जाएंगे. वहाँ पे सपोज फिश है, ऑक्टोपस है, तो ऐसे सारे शार्क है, वेल है. तो ये बहुत सारे बहुत बड़े बड़े सी में तो कितने बड़े बड़े होते हैं ना एनिमल्स. एंड यू कैन सी फिशेस आर देयर ऑल्सो. ओके, तो ये सारे जो है वो डेड हो जाएंगे. तो आफ्टरवर्ड्स वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. ओके, तो यहाँ पे कहा गया है ना कि गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. उसमें क्ले आ जाएगी. एंड एब्सेंस ऑफ एयर, एयर वहाँ पे नहीं होगी. हाई टेम्परेचर होगा. एंड हाई प्रेशर भी होगा. ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. सी, यहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होगा, नो एब्सेंस ऑफ एयर होगी. सो उससे क्या होगा कि हाई टेम्परेचर की वजह से वो पेट्रोलियम में एंड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे. आप किसी चीज़ को उबालोगे, सपोज मैं शुगर लेती हूँ, आई जस्ट टेक अ शुगर एंड वाटर एंड देन आई विल मिक्स इट. ओके, और मिक्स करके मैं आई विल बॉईल इट. बॉईल मैं करूँगी तो क्या होगा
कि इतना बॉईल करो, इतना बॉईल करो. हैव यू लिसन द वर्ड चाशनी? ओके, इन अ गुलाब जामुन you are eating. Okay, so this chasni will become a thick. Have you ever seen? It will become a thick. Okay, it means what कि उसमें मैंने I gave it a high temperature and high pressure. So likewise here, this is the so many wide place. See, it means what? There are so many wide place ना. So there are so many dead organisms are there, and they will convert into the petroleum and natural gas under the high pressure and high temperature in absence of air. Okay. Now look at figure 5.4. Figure 5.4 में क्या बोला गया है? That we will see. It shows the deposits of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum oil and gas is above that of water. And why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix it with it. Okay, it means what? Say, can you see over here? This is the petroleum and natural gas. So this is the gas, this is the oil. See, this is the gas and this is the oil. It and here the water. It means what? And ये जो है वो rocks है ना, मैंने डेड प्लांट्स का जो बोला था, तो उसमें से बन के जो ऑयल है वो सेपरेट होगा, और सेपरेट होके वो क्या करने लगेगा? it will float onto the surface of the water. Okay, वाटर में फ्लोट करने लगेगा. एंड गैस तो उससे भी ज़्यादा लेस वेटेड है, इसीलिए वो भी जो गैस है यहाँ पे फ्लोट करेगा. इट मीन्स व्हाट? दैट टेक अ सपोज आई एम गिविंग यू कि आपको एक स्पून में ऑयल लेना है, drop of oil, and just immerse into the water. Then what will you observe? कि ये जो ऑयल है वो ऊपर आने का ट्राई करेगा, and it will settle down at the surface of the water, right? It will not mix with the water. It means what? Here also petroleum is not mixed with the water, natural gas is also not mixed with the water. Okay, because oil and gas are lighter than water. Oil and gas are lighter than water. Okay, now refining of petroleum. Refining of petroleum क्या है? Refining of petroleum means उसको सेपरेट कैसे किया जाएगा और उसको क्लीन कैसे किया जाएगा. पेट्रोलियम इज डार्क ऑयली लिक्विड. डार्क ऑयली लिक्विड है पेट्रोलियम. ओके, अभी हम देख रहे थे तो कैसा दिखता है? येलोइश दिखता है ना, थोड़ा बहुत ऑरेंज येलोइश ऐसा दिखता है ना पेट्रोल. तो इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर. हाँ देखो, तो उसकी जो बुदबू है, उसकी जो स्मेल है वो बहुत अनप्लीजेंट है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा. ओके, जो पेट्रोलियम एंड पेट्रोल वो डिफरेंट है. पेट्रोलियम में कितने सारे सब्सटेंसेस कंस्टिट्यूट्स हैं यहाँ पे, दैट इज पेट्रोलियम में गैस, पेट्रोल, डीजल, ये तो हमें पता है, एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन वैक्स. ओके, ये सारे के सारे मटेरियल्स उसमें ऐड होते हैं, तो उसको सेपरेट करने की कुछ प्रोसेस होती है. द process of separating the various constituents or fractions of petroleum is known as refining. It is carried out in a petroleum refinery. I just told you, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये पेट्रोलियम रिफाइनरी है. इन पेट्रोलियम रिफाइनरी ये जो सारे के सारे वेरियस कंस्टिट्यूट्स एंड फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज, टू सेपरेट देम इट इज़ नोन एज रिफाइनिंग. तो ये जो सारे सारे पेट्रोल है, गैस है, देन you can take that is diesel also is there, paraffin is, wax is also there. तो ये जो सारे है ना, उसको डिफरेंट सेपरेट करने की कुछ टेक्निक होती है, उसको क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग कहते हैं. ओके, एंड दिस इज इंडस्ट्री इट इज़ गिवन. तो ये जो है ऐसी इंडस्ट्री होती है, उसमें उसका रिफाइनिंग होता है. ओके,
देखो यहाँ पे कंस्टिट्यूट्स ऑफ पेट्रोलियम, उस कंस्टिट्यूट्स ऑफ पेट्रोलियम मीन्स पेट्रोलियम में कौन से डिफरेंट होते हैं पार्ट्स, वो हमें यहाँ पे बताया गया है। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, पेट्रोलियम गैस ये लिक्विड फॉर्म में आता है, दैट इज फ्यूअल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, होम एंड इंडस्ट्री के लिए वर्क करता है। ये होमवर्क है आपका, दिस यू हैव टू डू दिस बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज। देन पेट्रोल, पेट्रोल इज मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। ओके, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग मीन्स कि कोई सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्यूशन जो होता है, उसको क्लीन करने के लिए जो आप पेट्रोल अंदर डालोगे तो वो क्लीन हो जाएगा, उसमें जो पार्टिकल्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। ओके, केरोसिन, केरोसिन ऑल्सो इट इज वन कंस्टिट्यूट फ्रॉम पेट्रोलियम। दैट इज केरोसिन का वर्क क्या है, इसका यूज़ क्या है, फ्यूअल फॉर स्टव्स, लैंप्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट। आई जस्ट टोल्ड यू, केरोसिन तो आपने सुना होगा। डीजल, डीजल का वर्क फ्यूअल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, लुब्रिकेंट ऑयल दैट इज लुब्रिकेशन, पैराफिन वैक्स दैट इज व्हाट, ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन्स एट्सेट्रा। सी पैराफिन वैक्स जो है, कैंडल्स में जो वैक्स आता है ना, वो भी पेट्रोलियम में से मिलता है। ये जो सी बिटुमेन दैट इज पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग, पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग। आप जो पेंट्स करते हो ना, तो ये जो सारा का सारा क्रेयॉन वैक्स आते हैं, देन आफ्टर ये जो आता है ना व्हाट इज इट कॉल्ड, एक्रिलिक कलर जो है, वो भी उसमें से ही मिलता है। ओके, तो ये जो है सारे के सारे वेरियस कंस्टिट्यूट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस दैट यू हैव टू रीड एंड रिमेंबर ऑल द टॉपिक्स and related to your subject, and it can be asked in your exam as a use of different separate parts. Okay, so various constitutes of petroleum and their uses are given. Okay, now natural gas, your the next topic is natural gas. अब natural gas क्या है? Okay, and then after we will see some natural resources are limited, that we will see, and our chapter will be over. Natural gas, natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. See natural gas is what? Natural gas is very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. थ्रू पाइप्स, ये जो पेट्रोल्स है वो पाइप से तो इतना भी इजी नहीं होता कि उसको ट्रांसपोर्ट करे जितना इजी टू ट्रांसपोर्ट द थ्रू पाइप्स, दैट इज गैस. Okay, natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas, CNG. Okay, compressed natural gas, natural gas किसमें स्टोर हो रहा है, हाई प्रेशर एंड हाई, ओके, हाई प्रेशर में उसको स्टोर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ओके, CNG इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन. CNG हमें क्यों किस में यूज होता है, पावर जनरेशन में यूज होता है. इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूअल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग, इट इज अ क्लीनर फ्यूअल. देखो ये जो नेचुरल गैस है वो नेचुरल गैस में CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो दिस इज यूज्ड, हाँ, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो किस में यूज़ होते हैं, व्हीकल्स में यूज़ होते हैं एज अ फ्यूअल, एंड दिस इज़ लेस पॉल्यूटिंग. उसमें बहुत जो सारे जो व्हाट इज़ इट कॉल्ड डर्ट होना चाहिए वो नहीं होगा. ओके, एंड इट इज़ क्लीनर फ्यूअल. The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. Such a network of pipelines exists in Baroda, some parts of Delhi and other places. देखो उसका बहुत बड़ा जो एडवांटेज है वो क्या है, इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स. बर्निंग इन होम्स, होम्स में हम जो पाइपलाइंस करते हैं तो वो भी CNG की आती है. ओके, देन फैक्ट्रीज़ में भी ये बहुत अच्छी तरह से यूज़ होता है, तो उसको इजीली पाइपलाइन की
through pipeline it can come to our home. Okay, so this is very easy technique for using the natural gas. Okay, and nowadays it is in Baroda and Delhi and in other places. Nowadays it is coming over here in our area also, some of the area. So natural gas is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers. See, natural gas is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals. बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए उसका जो स्टार्टअप होना चाहिए, जो फर्स्ट कंटेंट होना चाहिए, वो क्या है? नेचुरल गैस है. ओके, एंड फर्टिलाइजर ऑल्सो. सो मेकिंग फर्टिलाइजर ऑल्सो द नेचुरल गैस इज यूज्ड. एनपीके फर्टिलाइजर जो है उसमें भी यूरिया है, उसमें भी नेचुरल गैस इज यूज्ड. So India has vast reserves of natural gas. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in the Krishna Godavari Delta. देखो नेचुरल गैस कहाँ पे मिलते हैं? देखो यहाँ पे नेचुरल, हियर इट इज नेचुरल यूज ऑफ नेचुरल गैस हैज बीन गिवन दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक एंड in your exam it may asked as a question that you write the various uses of natural gas. When otherwise write advantages of natural gas, then you have to write these 2 paragraphs. Okay, and वो कहाँ मिलते हैं हमें? Where do we get? That is Tripura, Rajasthan, Maharashtra and Krishna Godavari Delta. Okay, can coal, petroleum and natural gas be prepared इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स? क्या वो ये लोग लेबोरेटरी में बन सकते हैं? बन सकते हैं लेबोरेटरी में? नो. Their formation is a very slow process and conditions for their formation cannot be created in the laboratory. उसमें जो कंडीशन चाहिए उसमें क्रिएट होने की, ये जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, देन कोल है, तो उसकी जो प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो है, बहुत सालों के बाद हमें मिलता है. तो सोचो कि हम पेट्रोल इतना सारा यूज़ करते हैं तो पेट्रोल हमें इतना सारा कहाँ से मिलता होगा, क्योंकि उसकी प्रोसेस तो बहुत स्लो है. तो हम सारा का सारा ले ले तो फिर आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स यू विल गेट द पेट्रोल, रियल डीजल. ओके, तो इट कैन नॉट बी मेड इनटू द लेबोरेटरी बिकॉज लेबोरेटरी में जो है वो डेड प्लांट्स का जो हमें चाहिए, जो कंडीशंस चाहिए वो भी यहाँ पे नहीं मिलती, नेचर से ही मिलती है. ओके, अंडरस्टैंड. So some natural resources are limited. Some natural resources are limited. वो topic है. Next our topic is some natural resources are limited, and here we are finishing our chapter. Some natural resources are limited. With this last topic we are finishing our chapter here. Okay. You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are existable like fossil fuels, forests and minerals etc. ओके, आपने देखा चैप्टर्स में क्या देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज किस में से मिलते हैं एंड उसका जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है? दैट इज फोसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स. कहाँ से मिलते हैं? फोसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स. सो यू नो दैट coal and petroleum are fossil fuels. It required the dead organisms millions of years to get converted into these fuels. उसको फ्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत साल लग जाते हैं. On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years. Okay, on the known reserves of these last only a few hundred years. तो हम थोड़े बहुत लास्ट में जाए तो उतना ही हम रिजर्व कर सकते हैं. ओके, सो मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. देखो ये जो पेट्रोल है, डीजल है, ये के सारे जितने बर्न होंगे ना, उतना एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा. तो आप लोग अभी देख रहे होंगे कोल है, पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, डीजल है, तो उससे क्या होगा? एयर पॉल्यूशन होगा. तो एयर पॉल्यूशन हो ही रहा ना अभी. तो आप you might have seen that into the road there are so many traffics and all
दे ऑल आर ड्राइविंग द व्हीकल्स, तो व्हीकल्स में से तो कितना पॉल्यूशंस निकलेगा, you might have seen. Okay, so this is because of air pollution. Okay, their use is also linked to global warming. ग्लोबल वार्मिंग से भी उसकी लिंक जाती है कि वो एयर पॉल्यूशन के लिए ग्लोबल वार्मिंग को स्पॉइल कर सकता है. ओके, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्यूट नेसेसरी. इसीलिए ये जो फ्यूल्स जो है वो हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमें ज़रूरत हो तब, when we need, or then only that we can use these fuels. Okay, this will result in better environment, smaller risk of global warming and their availability for a longer period of time. Smaller risk of global warming, ग्लोबल वार्मिंग का भी रिस्क है हमें, एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ अवेलेबिलिटी. सपोज हम जितना ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो आगे जाके हमें नहीं मिलेगा, बिकॉज उसको बनाने में तो कितना सारा प्रोसेस लगता है. नेचुरल रिसोर्सेज है तो नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत स्लोली बनता है ना. तो इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA advises people how to save petrol or diesel while driving. देयर टिप्स आर हियर. ओके, हम जब ड्राइविंग करते हैं तो उसको कंज्यूम कैसे करना है पेट्रोल एंड डीजल्स को. दैट हियर द 4 पॉइंट्स हैज बीन गिवन बाय द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन. दैट व्हाट इज, लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी. द ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. जैसे पॉसिबल हो तो उसको कांस्टेंट स्पीड में ही रखो, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं बहुत स्लो, कांस्टेंट स्पीड. सपोज यू कैन कीप इट इज़ 30 और इट इज़ 40 बट नॉट मोर देन दैट. ओके, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो रिस्की फॉर अस. स्विच ऑफ द engine एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट. देखो, जैसे ही ट्रैफिक लाइट आती है तो आपको यहाँ वहाँ पे यू हैव टू स्टैंड, ओके, फॉर एंड वेट फॉर दैट. That is, at that time you just switch off the engine. Okay, switch off the engine and then after you can start. Okay, whenever the traffic lights begins to fall. Ensure correct tire pressure. हाँ, टायर प्रेशर भी करेक्शन करना होता है कि आपको टायर भी चेक करवाना होता है कि टायर में ये जो एयर है वो है या नहीं. सपोज पंचर हो जाए तो क्या करेंगे हम, तो वो भी हमें ध्यान रखना है. एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल. एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल. तो व्हीकल का भी मेंटेनेंस रेगुलरली करवाना चाहिए कंपनी में. तो उससे क्या होगा कि वो लोग जो है वो इंजन है वो क्लीन कर देंगे, और क्लीन करने के बाद जो पेट्रोल डीजल्स आप यूज़ कर रहे हो वो नहीं होगा. ओके, ओके, सो हियर आई एम finishing your chapter. I am completing your chapter over here by with the nature coal petroleum, that is coal petroleum and natural gases, and uses of natural gases, limitations of natural gases, that we have seen. And I am going to complete your chapter over here, chapter 5. And I hope that you all understand. This chapter is very easy and it is to read only. जैसे जैसे आप read करोगे उससे जैसे जैसे आपको आ जाएगा. Okay, there is no any word that you don't understand. Okay, because all the words and all the sentences are familiar, because you all are familiar with the coal, petroleum and natural gases. Nowadays it is used very in the huge amount. Okay, so that's why please read this chapter, and we are going to complete this chapter over here. I hope that you students understand, and if you don't understand then please note down the questions that I will keep one lecture for you for taking our doubts, your doubts. Okay, and best of luck to all. Okay, bye everyone, bye.